داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اسے غور سے سننا، جذباتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ عبدہ کے ان الفاظ پر مجدد الدین فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک جواب طلب سی نگاہ اس نے مرسینہ پر ڈالی، اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا تب وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کا یہ رویہ مجھے بیگانہ اور اجنبی سا لگا ہے۔ کیوں کہ میں یہ سمجھ لوں کہ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ اجنبیت برتنے لگی ہیں۔ اماں آپ میرے لیے صداقتوں کا علم، میری کور چشمی کی بینائی اور بے چارگی کے لمحوں کے اندر میری خوشی کا سامان ہیں۔ اماں عہد رفتہ اور ماضی کے راستوں کی کھوج میں آپ کی ذات ہی میرے لیے رہبری اور بلند حوصلگی کی شمع ہے۔ آپ کے بغیر میں روح کی ویران کھیتیوں، تشنگی کے سرابوں، اجڑے دیار کے منتشر نقوش سے بھی کیا گزرا ہوں۔ آپ ہی کے زیر سایہ، آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بدتریف خزاں بھی ہمارے لیے اجنبی رہی۔ اماں آپ میرے ساتھ ہوں تو میں وقت کا بدترین احتساب بن کر گزرتی آندھی، آہٹوں، واہموں کی سیاہی اور افلاک کی بے کراں وسعتوں پر کمند ڈال سکتا ہوں۔ آپ کا سایہ، آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہو تو میں پھیلے دشت، گوشوں اور لاکھوں کرنوں کی آندھی مسافتوں میں بھی اپنا راستہ اس طرح بنا سکتا ہوں جس طرح پیاسے صحراؤں کے اندر سراب اپنا راستہ بناتے ہیں اور جس طرح ستاروں کے درمیان مہتاب اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اماں قسم مجھے اس قادر مطلق کی جو چاند کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، فلک کو ستاروں کا زیور پہناتا ہے۔ قسم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو ہانکتی ہیں اور جو اپنی کاریگری سے دن کو رات سے، روشنی کی تاریکی سے جدا کرتا ہے۔ آپ کے بغیر میری ساری خود اعتمادی، میرے گرد پیش کا تجسس، وقت کے دھاروں میں مقید زنگ آزمودہ ماضی اور گرسنا صداؤں سے بھی ہلکا ہو کر رہ جائے گا۔ اماں اگر مرسینہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات یہاں سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی۔ اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی تو کیا وہ آپ کی موجودگی میں بھی نہیں کہی جا سکتی؟ کیا وہ بات اتنی ہی اہم ہے؟ اب تک عبدہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر جب وہ یہاں تک پہنچا تو وہ بول اٹھی، بیٹے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو۔ بیٹے مرسینہ اب تمہاری بیوی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا ہے اور کبھی تم نے مجھ سے ایک بیٹے کی حیثیت سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا باپ تم سے جدا ہو گیا تو میں نے تم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، لیکن بچے یہ تم پر احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ اب مرسینہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پر اس سے علیحدگی میں گفتگو کرنی چاہیے تو پھر علیحدگی میں اس سے گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے۔ سانس لینے کے لیے عبدہ تھوڑی دیر تک کے لیے رکی، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجدد الدین یہ خیال
मत करना कि जो कुछ मरसीना तुमसे कहने वाली है इस सिलसिले में मुझे पराया या घर के सारे अफराद पर एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस मौजू पर ये तुमसे बात करना चाहती है इस मौजू पर पहले हम सब आपस में बात कर चुके हैं। ये भी ख्याल करना कि इस सिलसिले में मरसीना ने मुझे एतमाद में ही नहीं लिया, इसकी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटी की सी है और ये कोई भी काम मुझे एतमाद में लिए बगैर या मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करती। मैं इस पर इतनी खुश हूँ और मुतमईन हूँ जितनी तुम पर, शमसुद्दीन पर और खतलख पर हूँ। अपनी खुद की ज़ात पर अब ज़्यादा बहस मत करना। जिस मौजू पर मरसीना तुमसे गुफ्तगू करना चाहती है वो मौजू तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। गो इसकी अहमियत हम सब की निगाहों में है और इसमें किसी की ज़िंदगी का भी सवाल उठता है। इसलिए बेटे तुम मरसीना के साथ जाओ, जो ये कहना चाहती है सुनो। तुम्हें मरसीना के साथ अलहदगी में भेज रही हूँ ताकि जिस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू हुई है इस मौजू का सबसे ज़्यादा असर मरसीना पर ही होना है। इसलिए अलहदगी में तुम्हारा मरसीना को और मरसीना का तुम्हें मुतमईन करना इंतहाई ज़रूरी है। बेटे वो मौजू ऐसा है जहाँ सब के सामने गुफ्तगू नहीं की हो सकती। अब ज़्यादा बहस नहीं करना। मैंने कहा इसे आखिरी समझो। तुम जानते हो तुम्हारी अम्मा ने तुम पर कभी बदएतमादी नहीं की। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी गलत रहनुमाई नहीं की। अबदा यहाँ तक कहते कहते रुक गई, इसलिए कि मुजद्दुद्दीन मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बस अम्मा इससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपका हर फैसला, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अगर वो मौजू ऐसा है कि मुझे अलहदगी में मरसीना के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए तो मैं मरसीना से अलहदगी में गुफ्तगू कर लेता हूँ। मुजद्दुद्दीन ने मरसीना की तरफ देखा और कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। मरसीना फौरन उठी और मुजद्दुद्दीन के साथ बोली। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकल गए थे। इस मौजू के दौरान मिशाल बिचारी की हालत अजीबो गरीब थी। इसकी आंखों में अंधी बंजर जमीन और काली रात में परछाइयों जैसे अंदेशे और कभी नगमों की गुनगुनाहू भरी उम्मीदें रक्स करने लगी थीं और चेहरे पर कभी फिजा की बेकरानी में सुलगते फाकों जैसी परेशानियां और कभी जिंदगी की घरां कदर और अहम तरीन कदरों से भरपूर कैफियत दिखाई दिए जाती थी। ताहम इसने काफ़ी हद तक अपने आप को संभाले रखा। कमरे में जो गुफ्तगू होती रही बड़े गौर और इन्हमाक के साथ सुनती रही, चुपचाप रही। बहरहाल मुजद्दुद्दीन और मरसीना दोनों मियाँ बीवी इस कमरे से निकल गए थे। मुजद्दुद्दीन अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। मरसीना इसके पीछे पीछे थी। जिस लंबी नशिस्त पर जाकर मुजद्दुद्दीन बैठा था इस पर इसी के पहलू में मरसीना बैठी हुई थी। फिर इसकी तरफ देखते हुए मुजद्दुद्दीन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मरसीना, कहो तुम अलहदगी में कौन सा मौजू पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहती हो? मरसीना ने एक बार बड़ी बेचारगी और बड़ी आजिज़ी से मुजद्दुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगी, जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो बड़ा अहम और कड़वा भी है। पहले आप मुझसे ये वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगे। मुजद्दुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, मरसीना, मैंने शादी तुमसे
नाराज होने के लिए तो नहीं की थी। तुम कहो मैं कड़वी बातें सुनने का आदी हूँ, और फिर जिस सुल्तान के लश्कर का सालार हूँ, मैंने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेते हुए जिल्लत व पस्ती के कफन पहने, पेशावर गुलामों की अहानत भी की देखी, और पाबा जंजीर कैदियों की बेबसी भी देख रखी है। रोशनी बेगारों के अंधेरों की तरफ जाते कौमों और नस्लों के शिकस्त खुर्दा मुतहर्रक कारवानों को भी देख चुका हूँ। सरमा की ज़ालाबारी, गर्मी की लू, बरी आंधी, गहरी आहूं, अहमनाक सिसकियों का भी तजर्बा रखता हूँ। ऐसे मरतम गुजीदा दो टांगों के भेड़ियों से भी पाला पड़ चुका है, जो वहम और करब के जकड़ खड़े करने में खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ चुका है, जो खुद जहर पीकर औरों को अमृत के जाम देते हैं। मरसीना मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कोसो कज़ाह के पैराहन और गुलशन की आगोश की सरफराजी होते हैं। जहाँ शोहर अपनी बीवी की हिफाजत के लिए पासबां सी अकाबी नजर रखता है, वहाँ बीवी अपने जमाल के सरापे में सनसनी दौड़ा देने वाली तलस्समाती आसूदगी का बाइस भी बनती है। देखो मरसीना, तुम मेरी बीवी हो, मेरी देखभाल करती हो, मेरी खिदमत करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम कोई कड़वी बात भी करोगी तो मैं फिर भी नाराज नहीं हूँगा, बर्दाश्त करूँगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मुझसे कोई कड़वी बात करोगी। बहरहाल तुम क्या कहना चाहती हो? मुजद्दुद्दीन की इस गुफ्तगू से मरसीना को कुछ हौसला हुआ। जरा खिसक कर मुजद्दुद्दीन के करीब हुई, अपना दायां हाथ इसके दाएं हाथ पर, अपना सर इसके बाएं शाने पर रखते हुए मरसीना मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में बोली, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मिशाल से भी शादी कर लें तो फिर आपका क्या रवैया होगा? मुजद्दुद्दीन के शाने पर सर रखे हुए मरसीना इसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। इसने देखा कि इसके इस इंकिशाफ पर थोड़ी देर तक मुजद्दुद्दीन मुस्कुराता रहा। मरसीना का सर अपने शाने पर ही रहने दिया, फिर बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मरसीना तुम भी कमाल लड़की हो, अपने हाथों से अपने घर में सौतन लाना चाहती हो। क्यों अपने संगासन से उतरकर कुर्बान गाहों का रुख करना चाहती हो? क्यों अपने नफ्स को करब की तमाज़तों में डबोना चाहती हो? क्यों कुरब की ख्वाहिशों, मोहब्बत की बारिशों से निकलकर अपने दिल के लिए शुरीदा सरी का सामा करना चाहती हो? याद रखना, अगर तुमने मेरी दूसरी शादी करवा दी तो मैं घर में आंखों आंखों का तसादम होगा, रोशनी से रोशनी टकराएगी, अरमानो यास बरी शामो लहर की लड़प इस घर को अपनी अमाजगाह बना लेगी। फिर तुम क्या करोगी? यहाँ तक कहने के बाद मुजद्दुद्दीन कुछ देर तो रुका, कुछ सोचा। बड़े प्यार से इसने अपना हाथ मरसीना की गर्दन के गिर्द हमायल कर दिया। फिर कहने लगा, मरसीना आज तुम अगर मुझे मिशाल से शादी करने का कह रही हो तो जब तुम दोनों के रवैयों के बाइस इस घर का माहौल गुलस्तान से खारजारों और खुशनसीबी से बदबख्ती के रास्ते पर सफ़र करेगा, तो याद रखना तुम आज जिस तरह मुझे मिशाल से शादी का कह रही हो, इसी तरह इसे फारग करने का भी कहोगी। ज़रा उस वक़्त को भी अपने जहन में रख कर मुझसे बात करो।